हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. Experimental research is a collection of research designs which use manipulation and controlled testing to understand causal processes. Generally, one or more variables are manipulated to determine their effect on a dependent variable. So, what do you understand by experimental research? That it is a combination of different research designs. Research design क्या होती हैं? Factorial design हो सकती हैं, वन वे डिज़ाइन हो सकती हैं, टू वे डिज़ाइन हो सकती हैं. फैक्टोरियल डिज़ाइन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं विच आर मैनिपुलेटेड इन वेरियस वेज, और उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है. सपोजिंग वी हैव टेकन anxiety as an independent variable and we will manipulate that anxiety into various levels. For example, high anxiety level, moderate anxiety level and low anxiety level, and we want to see the effect of various levels of anxiety upon performance. So anxiety is manipulated. Anxiety, that is independent variable in this condition, it is manipulated in various ways and its impact is seen upon the performance of the individual. कि high anxiety में performance कैसा होता है, moderate anxiety में performance कैसा होता है और low anxiety में performance कैसे होता है. तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल बताया. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस which try to see the effect of one variable upon another variable by controlling various extraneous variables. The word experimental research has a range of definitions. In the strict sense, experimental research is what we call a true experiment. This is an experiment where the researcher manipulates one variable, controls or randomizes the rest of the variables. It has a control group and the subjects have been randomly assigned between the groups, and the researcher only tests one effect at a time. It is also important to know what variables you want to test and measure. So the key points are manipulation and study in the controlled environment and the assignment of the subject in different experimental condition in a randomized manner. So these are the key point for the true experiment. मैनिपुलेशन किनका होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन होता है जिनका इफेक्ट हम किसी वेरिएबल पर देखना चाहते हैं. कंट्रोल्ड वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनके इफेक्ट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं. मतलब अगर इन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल ना करें तो दे कैन exert their unwanted effect upon our dependent variable. For example, if we want to see the effect of anxiety upon performance, तो anxiety यहाँ पे independent variable है. control variable यहाँ पे क्या हो सकता है? इंडिविजुअल की मूड स्टेट, कि जिस समय हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले उसका इंडिविजुअल का मूड स्टेट क्या थी, उसका मोटिवेशनल लेवल क्या था, या जो जनरल कंडीशंस होती हैं आसपास बहुत शोर हो रहा था, क्या हो रहा था. मतलब सारे ऐसे वेरिएबल जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट इफ दे आर नॉट कंट्रोल दे कैन exert their unwanted effect upon our dependent variable. So all those variables are controlled for the sake of studying the impact of independent variable upon dependent variable. And it has a controlled group. What is the meaning of control group? Control group is that group which is not given the experimental variable. मतलब वो ग्रुप जिसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं. सपोजिंग वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस अपॉन परफॉर्मेंस. हम देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिस का परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो एक ग्रुप को हम प्रैक्टिस देंगे और दूसरे ग्रुप को हम प्रैक्टिस नहीं देंगे. तो जिस ग्रुप को हम प्रैक्टिस दे रहे हैं इसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बिकॉज वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज इंट्रोड्यूस ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. सो दिस ग्रुप विल बी नोन एज एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल कौन सा होगा? जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. इसको हम कंट्रोल्ड ग्रुप कहते हैं.
उसके बाद दोनों ग्रुप में जो अंतर आता है उसके बेसिस पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं whether practice is affecting performance or not, and if it is affecting, what is its direction? Is it affecting in the positive direction or is it affecting the performance in negative direction? So this is the control group, which is a key factor of a true experiment. So experimental research is commonly used in sciences such as sociology, psychology, physics, chemistry, biology and medicines, etc. Experimental research includes few steps such as stating problem, formulating hypothesis, variables that are measured, calculated and compared. Most importantly, experimental research is conducted in a controlled environment, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि जब तक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा तो इन्वायरमेंट की जो जिन चीज़ों को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, सपोजिंग वी डोंट वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ नॉइज अपॉन परफॉर्मेंस, लेकिन इतना शोरगुल हो रहा है कि वो हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रहा है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस और बिकॉज ऑफ द impact of noise. So if we want to see only the effect of practice, we have to control the noise effect. तो controlled environment होना चाहिए. The researcher collects data and results either support or reject the hypothesis. This method of research is referred to a hypothesis testing or a deductive research method. दो टाइप के रिसर्च मेथड होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव. आप एक बार जान लीजिए कि इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं. The deductive method is one of the methods of quantitative approach of research and is based on arriving at conclusions by narrowing down the research process at the end. In the deductive method, a researcher starts with various principles and logical rules to derive a conclusion. Deductive research aims to test an existing theory, while inductive research aims to generate new theories from observed data. Deductive research works from the more general to the more specific, and inductive research works from more specific observation to more general theory. पिक्टोरियल वे में और अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड. Inductive में we start from the observation, then we study the pattern, then we frame the hypothesis, and on the basis of these hypothesis we make a theory. So we are coming from the specific to general, while in deductive theory we start from general to specific. We are starting from theory, then we see the hypothesis, we observe the things and we give our confirmation. So deductive reasoning starts from general principle to specific case, while inductive reasoning starts from special case and ends to general principle. These are the basic differences between inductive method and deductive method. Now, what are the purpose and goals of experimental research? Experimental research seek to determine the relationship between two variables, that is independent and dependent variable. इसमें हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में बेसिकली किस टाइप की रिलेशनशिप है. डेमॉन्स्ट्रेट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्लियरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं कि किस कारण से ये हुआ. अगर मान लीजिए मेज से गिरने की वजह से ग्लास टूट गया, तो ग्लास के टूटने का कारण क्या है? मेज से गिरना. तो here we are very much clear about the cause and effect of this particular case. So in experimental research we try to explore the cause and effect relationship between variables. Third is assess the causal impact of manipulation of one or more experimental manipulations. Experiments are conducted to be able to predict phenomena. Typically, an experiment is constructed to be able to explain some kind of causation. Experiment का मतलब ही ये होता है कि we are trying to identify the cause and effect relationship between various variables. जैसे हमारी कुछ रिसर्चेज होती हैं, साइकोसोशल रिसर्चेज होती हैं, उनमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं इस्टेब्लिश करते. उसमें we try to establish the association between the variables.
and there is a very big difference between cause and effect and association. एसोसिएशन क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए हमने दो वेरिएबल लिए, मेंटल हेल्थ एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, तो हम ये नहीं कह सकते कि विच इज कॉज एंड विच इज इफेक्ट, क्योंकि हम टू वे इस बात को कह सकते हैं. मेंटल हेल्थ कैन अफेक्ट द लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड इन द सेम टाइम लाइफ सेटिस्फैक्शन कैन ऑल्सो अफेक्ट अवर मेंटल हेल्थ. तो यहाँ पे कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. इस एग्जाम्पल में यहाँ पे क्लियर एसोसिएशन है कि मेंटल हेल्थ एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन आर रिलेटेड, आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. सो दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलवेज ट्राइज टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये बिल्कुल क्लियर बोलती है, इफ ए देन बी. अगर ग्लास टेबल से जमीन पर गिरा है इसलिए टूटा है, इसका रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता है, जैसे हमने दूसरे वाले एग्जाम्पल में बताया था. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ट्राइज टू एक्सप्लोर ऑलवेज द कॉजेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स. नाउ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन लाइक एक्सपेरिमेंट बट नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स. Causal interference, cause and effect relationship, and subjects are randomly assigned to different groups. Now, you can understand the basic structure of experimental research by this flow chart. It starts from formulating a problem, then hypothesis, then we have to frame a design of the experimental research, then sampling, what will be the process of sampling, tools, data collection, analysis, verifying hypothesis, deriving conclusion. इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. प्रॉब्लम, सपोजिंग हम कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं. यहाँ पे हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड अपॉन एक्यूरेसी. मतलब स्पीड और एक्यूरेसी में क्या संबंध होता है. उसके बाद हमें हाइपोथेसिस बनाना है और हमने एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बेसिस पर सपोजिंग हाइपोथेसिस बनाई कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. हाइपोथेसिस हमने बना लिया कि स्पीड और एक्यूरेसी में नकारात्मक संबंध होता है, कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एक्यूरेसी घटती जाएगी. तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट लिटरेचर वी हैव फॉर्मुलेटेड अ हाइपोथेसिस दैट देयर वुड बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. उसके बाद हमने इसकी डिज़ाइन बना ली. डिज़ाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ मैनिपुलेटेड इन 2 or 3 वेज, वेरी हाई स्पीड, मॉडरेट स्पीड, लो स्पीड, एंड द इफेक्ट ऑफ these 3 experimental treatment upon accuracy of the performance. Then sampling. डिज़ाइन के बाद अब हमें ये डिसाइड करना है कि सैम्पल हमारा क्या होगा एंड व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी. अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो उसमें 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड सैम्पलिंग होगी या मोर देन 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड सैम्पलिंग होगी. यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिया है ये हमारा सैम्पलिंग का मेथड होगा, मोर देन 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड डिज़ाइन. फिर उसके बाद हमारे टूल्स आते हैं कि स्पीड की एक्यूरेसी और स्पीड के रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए हम टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं. सपोजिंग कोई हमारे पास स्टैंडर्डाइज टूल है या हम उन्हें कोई मैथ्स की प्रॉब्लम दे रहे हैं और उनको हमने एक सर्टेन टाइम दे दिया है और हम उनकी बाद में देख लेंगे कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए. तो टूल्स क्यों होते हैं? टूल्स हमारे डेटा कलेक्शन का माध्यम होते हैं, इनके थ्रू ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं. इसके बाद टूल्स के बाद डेटा कलेक्ट किया, मतलब हमने कुछ 50 लोगों के ऊपर उनको कुछ टास्क दे दिया. सपोजिंग हमने मैथ्स के क्वेश्चन दे दिए 100 और उसके बाद हमने देखा कि स्पीड और एक्यूरेसी में क्या रिलेशन है. उसके बाद उसको एनालाइज किया. सपोजिंग हमने उनके स्कोर लेके और उनके बीच में टी टेस्टिंग कर ली. उसके बाद टी टेस्टिंग के बेसिस पर अगर जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट है इफ़ दैट इज़ फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट, उसका मतलब है कि हमारी हाइपोथेसिस वेरीफाई हो गई. अगर जो हमारा टी रेशियो है इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट देन what does it mean? It means that there would be an inverse relationship between speed and accuracy. उसके बाद हमने conclusion derive किया कि yes there is
an inverse relationship or there is a negative relationship between speed and accuracy. So this is the flow chart of experimental research. ये बहुत एक छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाया है. I think it will be clear now. अब ये क्या हो रहा है, ये एक टाइप की एक्टिविटी है जिसे हम थम्स रोलिंग बोलते हैं. अब सपोजिंग कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ये हैबिट होती है, इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं. तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल के रिसर्च के चार्ट के हिसाब से अगर चलना चाहें तो हम इस पर क्या प्रॉब्लम बना सकते हैं. हम ये प्रॉब्लम बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ थम्स रोलिंग अपॉन द कंसंट्रेशन. कुछ लोग इसको कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, या कुछ लोग जब कंसंट्रेशन अपना इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस टाइप की एक्टिविटी करना चाहते हैं. कुछ लोग जब नर्वस होते हैं तभी एक्टिविटी करना चाहते हैं. तो हाइपोथेसिस हम क्या लेंगे कि थम्स अराउंड विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल. एक हमने प्रॉब्लम बना ली, प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने हाइपोथेसिस बना ली. अब इसके लिए वही सारी प्रोसेस हमें रिपीट करनी है. सैम्पलिंग में हम किस टाइप के इंडिविजुअल्स को लेंगे, सिर्फ उन टाइप के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन टाइप के इंडिविजुअल्स को लेंगे जिनको थम्स अराउंड करना आता होगा, और दूसरे ग्रुप में उन इंडिविजुअल्स को लेंगे जिन्हें थम्स अराउंड करना नहीं आता होगा. और अगर हमारा ये सिंगल शॉट डिज़ाइन है तो सिर्फ एक ग्रुप से ही हमारा काम चल जाएगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस टाइप के थम्स राउंड करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है. तो लाइफ की कोई भी इवेंट हो उसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, बट following the flow chart of the experimental research. We have to follow the steps of experimental research. Now, types of experimental research design. The experimental design is defined as the methods used to collect data in experimental studies. There are three primary types of experimental design. First is pre-experimental. It is known as non-design also, true experimental research design. And third is quasi-experimental research design. First, we will come to pre-experimental research design, also known as non-designs. In pre-experimental research, researchers follow basic experimental steps but do not use a control group. That is why this is known as the non-designs. Pre-experimental research serves as a precursor or preparation phase taking place before any true experimental research. This research is conducted to understand whether further investigation is necessary for these particular groups or not. Pre-experimental research is further classified in three types. First is one-shot case study research design. As its name implies, in a one-shot case study, the treatment X is given to a single group, and subsequently an observation O is made to assess the effect of treatment upon the group. मतलब एक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. सपोजिंग हमें ये देखना है कि प्रैक्टिस का परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो यहाँ जो प्रैक्टिस है ना, इट इज़ नोन एज एक्स, और प्रैक्टिस का इफेक्ट हमने देख लिया कि वो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है. दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज वन शॉट केस स्टडी. इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, इसमें कोई बिफोर एंड आफ्टर नहीं होता है कि पहले क्या था और प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ. दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज द नॉन डिज़ाइन. So this design is limitation that it does not provide any control group, and before and after comparison is not possible in this type of design. Second is one group pre-test post-test research design. This design is an improvement over the one-shot case study because the effect of treatment X are judged by making a comparison between pre-test and post-test scores. Supposing जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, we want to see the effect of practice upon performance. तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कि नहीं. तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन 1 लेंगे. ऑब्जर्वेशन 1 हमारा वो ऑब्जर्वेशन होगा जो प्रैक्टिस से पहले का है. मान लीजिए अगर हम किसी का मैथ्स का परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो हमने पहले उसको ऑल ऑफ ए सडन एक टेस्ट ले लिया उसका. अब हमारे पास उसके प्री टेस्ट के रिजल्ट हैं. उसके बाद हमने उसे प्रैक्टिस कराई. उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन 2 लिया. ऑब्जर्वेशन 2 जो है हमारा, वो हमारा प्रैक्टिस के बाद का है.
तो यहाँ पर O1 एंड O2 में कंपैरिजन करके हम ये जान सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस अपॉन परफॉर्मेंस. सो दिस design is an improvement over the one shot case study. Third is static group comparison. In this design, two groups are taken. One group, O1, experiences the experimental treatment, and another group does not experience the experimental treatment, that is O2. Subsequently, these two groups are compared. अब इसमें क्या है, इसमें एक कंट्रोल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और लेकिन यहाँ पर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. एक ग्रुप को इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, मतलब एक ग्रुप को इन्होंने प्रैक्टिस दी और उसका परफॉर्मेंस O1 देख लिया, और दूसरे ग्रुप को कोई प्रैक्टिस नहीं दी और उसका ऑब्जर्वेशन देख लिया. अब वहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज प्रैक्टिस इन दिस केस अपॉन परफॉर्मेंस. लेकिन इसमें बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं. हो सकता है जो O2 है वो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज रखता हो, तो अगर मान लीजिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रैक्टिस इज नॉट इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस. सो इस डिज़ाइन के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं. और डॉटेड लाइन का मतलब है कि द टू ग्रुप्स आर नॉट सेलेक्टेड रैंडमली एंड दे आर नॉट, और जो ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया गया है ये रैंडमली डिसाइड नहीं किया गया है कि O1 को मिलेगा या O2 को मिलेगा. इसमें कोई एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मिलता है जबकि दूसरे को नहीं मिलता है. तो बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर नॉट सो यूजफुल फॉर द रिसर्च पर्पसेस. नाउ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च relies on statistical analysis to prove or disprove a hypothesis, making it the most accurate form of research. Of the types of experimental design, only true design can establish a cause and effect relationship within a group. True experimental research is the actual process of experimentally researching a subject. In true experimental research, sample groups are randomly assigned. One designated control group is assigned and only one variable can be manipulated at a time. In addition, any test subjects are assigned to the control or experimental groups randomly. So, randomization and control group, these are the two requisites of the true experimental research design. In the true experiment, three factors need to be satisfied. देयर इज अ कंट्रोल ग्रुप जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है हमारे पास कोई कंपैरिजन का पैरामीटर नहीं है. एंड एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके ऊपर. एंड थर्ड इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन. सो कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द सब्जेक्ट मस्ट बी असाइन्ड रैंडमली in either control group or in experimental group. तो random distribution बहुत ज़रूरी है, control group और experimental group. These are the three factors that must be satisfied for becoming a true research design. Controlling, manipulation and randomization. Now, what are different types of true experimental research design? First is equivalent group design, that is also known as post test only. In this, this R is, the meaning of R is that the subjects are randomly assigned to different groups. This design is the most effective and useful true experimental design which minimizes the threats to the experimental validity. It can be diagrammed as shown below. R is showing the randomization. One group is given the experimental treatment while the other group is not given the treatment. Now we compare the performance of the both groups. इसमें अगर कुछ changes आते हैं, that is only because of the introduction of this experimental treatment, और इसमें जो आता है that is not. This group is known as the control group and this group is known as the experimental group. Second is pre-test, post-test control group design. This can be diagrammed as R, O1
एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन 2, O3 एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन 4. इसमें आपकी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट वाली सेटिंग है कि इसमें जो हमने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया है, इसके पहले हमने एक प्री टेस्ट लिया है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद हमने पोस्ट टेस्ट लिया है. तो ये सेटिंग हमें ये बताएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस. उसके बाद लेकिन ये जो है कंट्रोल ग्रुप का है, इसमें सेकेंड वाले ग्रुप को हमने प्री टेस्ट उनका लिया, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे फिर इनका ऑब्जर्वेशन लिया. तो O2 और O4 के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस O अपॉन परफॉर्मेंस. अगर ये O2 का परफॉर्मेंस इज फाउंड टू बी बेटर एज कंपेयर टू O4, दैट इज this factor is working positively for O2. Third experimental research design is Solomon 4 group design. The Solomon 4 group design developed by Solomon is really a combination of the two equivalent group design described above, namely the post-test and the pre-test post-test design. And it represents the first direct attempt to control the threats of the external validity. In this first part is replication of pre-test post-test control group, and the last two lines are the replication of equivalent group design or the post-test only. इसमें जो स्टार्टिंग के दो ग्रुप हैं, इनमें प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट है और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दिया जा रहा है, और इसमें लास्ट वाले में प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है. ओनली वन ग्रुप इज गिवन द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट while the other group is not getting the experimental treatment. So it increases the external validity or generalizability. The factorial analysis of variance can be used as the appropriate statistical test for Solomon 4 group research design. Now, quasi-experimental research design. The word quasi indicates similarity. A quasi-experimental design is similar to experimental, but it is not the same. The difference between the two is the assignment of a control group. In this research, an independent variable is manipulated, but the participants of a group are not randomly assigned. Quasi-research is used in field settings where random assignment is either irrelevant or not required. Quasi-experimental research design is used extensively in psychology and the social sciences. Quasi-experimental research is similar to true experimental research but does not use a random allocation of test subjects to a control or experimental group. In fact, quasi-experimental research may lack any control group at all, making analysis of the subject more difficult. मतलब ये जो quasi experimental research design है, ये टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की जो बेसिक 3 एलिमेंट्स थे उसको सेटिस्फाई नहीं करती है. मतलब इसमें रेंडमाइजेशन ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए इसकी जितनी रिसर्च डिज़ाइन है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन का क्या मतलब होता है कि सब्जेक्ट्स आर नॉट रेंडमली असाइंड टू वेरियस ग्रुप्स. That is why this is similar to true experimental research design but not exactly the true experimental research design. The first type of quasi-experimental research design is time series design. Sometimes it happens that a control group or a comparison group cannot be included in an experiment because of the situation in which the experiment is being conducted. But still, the researcher wants to have a design which may exercise a better control over the extraneous variables. Extraneous variables क्या होते हैं? वो वेरिएबल जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना अनवांटेड इफेक्ट डाल सकते हैं और जिनको हम स्टडी नहीं करना चाहते. ऑल दोज वेरिएबल्स आर नोन एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल. और ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं ये फिक्स नहीं होते हैं. एक एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें हमारे लिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में वही हमारे लिए इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती हैं. मान लीजिए अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अपॉन इंटेलिजेंस लेवल, तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया.
दूसरी कंडीशन में हम ये अगर मान लीजिए स्टडी करना चाहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन अपॉन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। तो कौन सा वेरिएबल एक्सट्रेनियस या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर्स प्रॉब्लम। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल वही रहेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन भी होते हैं, जैसे लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो वेरिएबल एक बार एक्सट्रेनियस हो गए वो इन एवरी कंडीशन एक्सट्रेनियस ही रहेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द स्टडी। नाउ it is obvious from the above diagram, for example O1, O2, O3, O4, then a treatment is given, then O5, O6, O7 and O8. So it is obvious from this diagram that a series of pre-test are given to the group. सीरीज का क्या मतलब है कि मतलब हमने प्री टेस्ट कई बार लिए, यहाँ पे 4 हमने ऑब्जर्वेशन लिए प्री टेस्ट के और 4 ऑब्जर्वेशन हमने लिए पोस्ट टेस्ट के। So a series of pre-tests are given to the group and the treatment X is given and a series of post-tests are given to the same group. This design differs from the single group pre-test post-test design because instead of giving a single pre-test and post-test, a series of pre-test and post-tests are given. The extraneous variables like maturation, testing, selection are well controlled in this type of study. So this is a good research design for controlling maturation, testing and experimental mortality. Second is the equivalent time sample design. The equivalent time sample design is an extension of the time series design with the repeated introduction of the treatment or the experimental variable. Like the time series design, in equivalent time sample design, a single group is used and the group is exposed to repeated treatment in some systematic way. And it can be diagram as X1, then observation 1, XO, observation 2, X1, observation 3, XO, observation 4. So it is clear that in equivalent time sample design, the treatment X1, instead of being given for a single time, is introduced and reintroduced with some other experience which is available in the absence of the treatment. The variable history, which is the major limitation of the time series design, is well controlled by representing X on several separate occasions. So this design is an extension and better form of time series design. Now, types of trials in experimental research. When conducting the randomized testing in experimental research, researcher can use either single or double blind trials to further help eliminate biases. Single blind trials. In a single blind trial, test subject do not know in which group they are in or what they are having done to both as part of the experiment. In fact, test subjects only find out what group they tested in upon completion of the study. सिंगल ब्लाइंड ट्रायल में जो सब्जेक्ट होता है उसको ये नहीं पता होता है कि वो किस ग्रुप में है, लेकिन एक्सपेरिमेंटर को पता होता है। और सब्जेक्ट को एट द एंड ऑफ द मतलब जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है तब उसको ये बात पता चलती है। इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, मतलब एक पार्टी ब्लाइंड होती है और एक पार्टी को पता होता है। और इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि किस एक्सपेरिमेंटल या किस कंट्रोल कंडीशन में वो एक्सपोज है। Second is double blind trials. In a double blind trial, neither participants or researcher know which test subjects are in experimental or in control group. इसमें ना तो एक्सपेरिमेंटर को पता होता है और ना ही सब्जेक्ट को पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है और कौन सा सब्जेक्ट कंट्रोल ग्रुप में है। This type of study helps reduce biases on the part of the researcher. Researchers जो होती हैं, they are very important because they are done for the purpose of generalization and for making the world better to live in. तो रिसर्चर का हमेशा ये एम होता है कि वो अपने रिसर्च को
ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करे, तो ये जो सिंगल ब्लाइंड टेक्निक और डबल ब्लाइंड ट्रायल्स होते हैं, ये उसी दिशा में एक अटेम्प्ट है जस्ट टू रिड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ बायसेस. Advantages of experimental research. Experimental research is most useful for drawing conclusions regarding interventions and treatments and establishing whether or not one or more factor cause a change in an outcome. तो ये जितनी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं, जैसे केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती हैं, बेसिकली ये मेडिसिन के ऊपर बेस्ड होती हैं, और ये एक्सपेरिमेंटेशंस के ही थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है. जैसे पहले एक्सपेरिमेंट होता है कि एनिमल्स पे होता है, एनिमल्स के ऊपर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके ऊपर ह्यूमन बींग्स के ऊपर होता है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनके थ्रू ही हम किसी कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं. तो बायोलॉजिकल साइंसेज में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कोई मेडिसिन फ्लोट नहीं होती है, क्योंकि मेडिसिन में भी डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिशंस को टेस्ट करके डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई जाती हैं. जैसे अब आजकल कोरोना की वैक्सीन को बनाने का ट्राई किया जा रहा है, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है. तो एक्सपेरिमेंटल फेज में होने का यही मतलब है कि उसको अभी टेस्ट किया जा रहा है कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑन ह्यूमंस और नॉट. और उसमें अभी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि कि कौन से ऐसे उसमें कंपाउंड्स या कौन से केमिकल्स मिलाए जाएं कि जो कि वो कोरोना वायरस को मार सके या कंट्रोल कर सके. सो दिस इज ऑल डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज आर वेरी यूजफुल for the survivals of human being, and as far as social sciences are concerned, यहाँ पर भी हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. सो दीज आर ऑल द रेफरेंसेस कि कहाँ से मैटर लिया है, स्लाइड कहाँ से हैं और ग्राफ कहाँ से हैं. और उम्मीद है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा. तो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.